Hello everyone, I am Vandana and we are learning Computer of Class 5 by Coral Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 9, which is Code to Gaming in Scratch. Here let's start this chapter with Chapter Connect. Open Scratch window on your computer or laptop. आपको क्या करना है? Scratch window को open करना अपने computer या फिर laptop में. Choose a background and sprites of your own choice. अपना खुद का एक background और sprites को हमें choose करना है. Experiment by having your sprites dance, change colors, play sounds, etc. and paste prints of any two screenshots of your game. So this you have to do yourself. Now let's start the chapter. Scratch is a visual programming language. ये एक visual programming language है that helps us to make our own interactive stories, animations, games, music and more. So Scratch में हम ये सारी activities कर सकते हैं. हम अपने खुद की stories बना सकते हैं, animations बना सकते हैं, games बना सकते हैं, music बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. This can be done using drag and drop block. इसे जो हम drag और drop block को use करके कर सकते हैं. And an active object called sprites, और एक sprite की मदद से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं. Let's move on to getting started with Scratch 3.12. To open Scratch 3.12, do the following. First, we have to click Start button. Start button पे जाना है, and then scroll menu and select Scratch 3. फिर menu को scroll करके हमें Scratch 3 को select करना है. We have already learned the basics of Scratch. हमने already Scratch के basics पढ़ लिए हैं. And now we will learn the development of games in Scratch. अब हम पढ़ेंगे Scratch में हम कैसे games को develop कर सकते हैं. Scratch 3.12 makes game development easy to learn and fun to create. So ये जो Scratch 3.12 है, ये क्या करता है? Game development को काफी easy बनाता है और इसे लर्न करना काफी ज्यादा आसान है और बनाना भी काफी ज्यादा फन से भरा हुआ है. Next, let's move on to cyber tidbits. In this chapter, we will use Scratch 3.12. यहाँ पे हम 3.12 पढ़ेंगे Scratch का ये जो version है. You can download Scratch 3.12 from the following link. यहाँ जो link दिया गया उसके through हम इसे download कर सकते हैं. So download it now. After downloading, let's move on to project. Let's make an underwater game in Scratch 3.12. तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक underwater game बनाएंगे. So in this game we will have two different characters. इस गेम में हमारे पास दो characters होंगे. One will be moved by the player, जैसे इसमें से एक जो है player move करेगा एक character को, and second one will move randomly, और जो second वाला है वो randomly move करेगा. When we touch the character by the other one, we score a point. जब हम एक कैरेक्टर को दूसरे के द्वारा टच करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है. So let's start. Step 1 is click on the delete button on the sprite. जो delete button है sprite पे, यहाँ पे हमें क्लिक करना है. We need a background on the stage. हमें पहले एक बैकग्राउंड चाहिए तो हम क्या करेंगे? Click on the choose a backdrop button. backdrop button पे हमें जाना है. Next, let's move on to cyber tidbits. We can also draw our own background with the paint button in the background option. So हम अपना खुद का background बना सकते हैं. अब step 3 क्या है? Choose the underwater one background. तो यहाँ से underwater one background हमने choose किया. Now the selected background will appear on the stage. अब ये जो background है आपको यहाँ stage पे दिखाई दे रहा है. As our stage is ready, we will start adding the characters on the stage. तो अब हमारा स्टेज रेडी हो गया. अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे कैरेक्टर्स डालने हैं. Now, cyber tidbits. We can also draw or change the color of the sprite. हम जो sprite है उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं with the paint button in the sprite options. यहाँ पे जो पेंट बटन है sprite option में, वहाँ पे जाके. Now, next step is click on the choose a sprite to choose sprite from the library. तो यहाँ से हम स्प्राइट को चूज कर सकते हैं. क्लिक ऑन द एनिमल सेक्शन. अब एनिमल सेक्शन में जाना है. सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन ऑक्टोपस एज प्लेयर. तो सबसे पहले हम ऑक्टोपस को यहाँ से चूज करेंगे. ये हमारा फर्स्ट प्लेयर है. द सेलेक्टेड स्प्राइट अपीयर्स ऑन द स्टेज. जो स्प्राइट हमने चूज किया वो स्टेज पे आ चुका है.
क्लिक ऑन द साइज बॉक्स एंड चेंज द नंबर टू 50। अब हमें साइज बॉक्स में जाना है, यहाँ पे जो नंबर है उसे 50 पे लेके आना है। नेक्स्ट, साइबर टिडबिट्स, वी कैन रिड्यूस और इंक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट। जो स्प्राइट है उसके साइज को हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन और द लोकेशन ऑफ द स्प्राइट ऑन द स्टेज। हम क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्शन है या जो लोकेशन है स्प्राइट का स्टेज पे, उसे भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने जो है साइज वो चेंज किया। नाउ वी विल प्रोग्राम द स्प्राइट टू मूव विथ द कीज ऑन द कीबोर्ड। जो कीबोर्ड पे जो कीज है उसकी मदद से हम स्प्राइट को मूव करेंगे। क्लिक ऑन द इवेंट्स ब्लॉक कैटेगरी। अब हम इवेंट्स ब्लॉक कैटेगरी में जाएंगे एंड ड्रैग व्हेन की प्रेस्ड ब्लॉक ऑन द स्टेज। हमें जो व्हेन की है, व्हेन की प्रेस्ड ब्लॉक है, उसे यहाँ पे लाना है। क्लिक ऑन द व्हेन की प्रेस्ड ब्लॉक, चेंज द की टू अप एरो। अब यहाँ पे हमें जाके अप एरो, ये जो आइकन आपको दिख रहा है, इसको हमें क्लिक करना है, इसे चूज करना है। फ्रॉम द मोशन ब्लॉक कैटेगरी, क्लिक एंड ड्रैग द चेंज वाई बाई ब्लॉक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मोशन ब्लॉक कैटेगरी में हमें जाके चेंज बाई वाई इस ब्लॉक को उठाना है। एड दीज टू ब्लॉक्स, अब इन दोनों ब्लॉक्स को हमें यहाँ पे ऐड करना है। व्हेन की प्रेस ब्लॉक एंड चेंज वाई बाई ब्लॉक ऑन द स्टेज। अब इन दोनों को हम स्टेज पे ले आएंगे। नेक्स्ट, चेंज देयर वैल्यूज टू डाउन एरो। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें डाउन एरो पे करनी है चेंज, एंड -10 और -10 पे करना है एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है। एड दीज टू ब्लॉक्स, अब इन ब्लॉक्स को हमें ऐड करना है। व्हेन की प्रेस्ड ब्लॉक एंड चेंज x बाय ब्लॉक ऑन द स्टेज। अभी जो ब्लॉक्स हैं मेंशन किए गए हैं उन्हें हमें ड्रैग करके यहाँ लाना है। सेट देयर वैल्यूज एज शोन इन द फिगर, जैसा आपको फिगर में यहाँ दिख रहा है ऐसे हमें वैल्यूज को चेंज करना है। नाउ चेक द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट। अब जो स्प्राइट है उसकी मूवमेंट को हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ एरो कीज, एरो की मदद से। इफ फाउंड सम एरर देन रीचेक द कोड्स। अगर आपको लगता है कि आपने ये सब कुछ डाल दिया उसके बाद भी जो है एरर दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है चेंज, तो आपको क्या करना है, अपने कोड्स को रीचेक करना है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, add the new sprite to the stage by clicking on choose a new sprite। अब न्यू स्प्राइट को हमें दोबारा से ऐसे चूज करना है। नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिश टू ऐड द न्यू स्प्राइट। अब हम फिश बटन को क्लिक करेंगे, फिश वाला जो स्प्राइट है उसे चूज करेंगे यहाँ से। द सेलेक्टेड स्प्राइट अपीयर्स ऑन द स्टेज। जो स्प्राइट हमने सेलेक्ट किया था वो स्टेज पे आ गया। रिड्यूस द साइज ऑफ स्प्राइट टू 50। अब जो साइज है स्प्राइट की उसे 50 कर देना है हमें। नाउ वी हैव टू मूव द फिश टू द रैंडम पोजीशन ऑन द स्टेज। अब हमें फिश को क्या करना है, एक रैंडम पोजीशन पे लेके जाना है स्टेज पे, फॉर विच वी हैव टू प्रोग्राम द फिश। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिश को प्रोग्राम करना होगा। फ्रॉम द इवेंट्स कैटेगरी, अब हमें इवेंट्स कैटेगरी में जाना है। एड द व्हेन फ्लैग क्लिक ब्लॉक, इस ब्लॉक को हमें चूज करना है। फिर हमें जाना है कंट्रोल कैटेगरी में और इसमें से ऐड करना है फॉरएवर ब्लॉक को, ये आ गया। फिर हमें जाना है मोशन कैटेगरी में और ऐड करना है द ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन ब्लॉक। सो ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन ब्लॉक, इससे हमें यहाँ पे ले आए। नाउ वी विल राइट अ कोड सो दैट व्हेन आवर स्प्राइट टचेस द फिश। तो हम एक कोड लिखेंगे कि जब हमारा स्प्राइट जो है फिश को टच करे, इट मेक्स अ साउंड एंड एड्स टू द स्कोर। वो एक साउंड निकाले और हमारा स्कोर ऐड हो जाए। नेक्स्ट, ऐड व्हेन फ्लैग क्लिक्ड फ्रॉम द इवेंट्स कैटेगरी। अब हमें ये जो ब्लॉक है ये लाके यहाँ पे रखना है। ऐड फॉरएवर ब्लॉक, फॉरएवर ब्लॉक को यहाँ पे लाना है। एंड इफ देन ब्लॉक फ्रॉम कंट्रोल कैटेगरी, और इफ देन ब्लॉक को लाना है कंट्रोल कैटेगरी से। ऐड टचिंग माउस पॉइंटर, अब हमें यहाँ पे टचिंग माउस पॉइंटर को ऐड करना है। ब्लॉक फ्रॉम द सेंसिंग कैटेगरी, ये आपको सेंसिंग कैटेगरी में मिलेगा। चेंज माउस पॉइंटर टू फिश, जो माउस पॉइंटर उसे फिश तक हम ले आएंगे बाय ड्रॉप डाउन बटन की मदद से। स्टेप 19 इज ऐड प्ले साउंड अंटिल डन ब्लॉक फ्रॉम द साउंड्स कैटेगरी। साउंड्स कैटेगरी में से हम प्ले साउंड अंटिल डन बॉक्स को यहाँ पे लेके आएंगे। चेंज ओशन वेव टू स्प्लैश, जो ओशन वेव है उसे स्प्लैश से कन्वर्ट हम कर देंगे, चेंज कर देंगे बाय द ड्रॉप डाउन बटन, जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन दिया गया उसकी मदद से। नाउ चेक द कोड बाय मूविंग द ऑक्टोपस। अब हमें जो भी कोड्स हमने डाले उसे चेक करना है ऑक्टोपस को मूव करके विद द एरो बटन एंड टच द फिश।
एरो बटन की मदद से और फिश को टच करते हैं। द साउंड ऑफ स्प्लैश शुड प्ले, जैसे वो ऑक्टोपस हमारा फिश को टच करे, जो साउंड है स्प्लैश का वो यहाँ पे आ जाए। Whenever we play a game, we need score also. जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमें स्कोर भी चाहिए होता है। To make the score, अगर आप स्कोर को बनाना चाहते हैं, we have to make a new variable. तो हमें क्या करना होगा, एक नया वेरिएबल बनाना होगा। Click on the variables category. अब हमें वेरिएबल्स कैटेगरी पे क्लिक करना है। Click on the make a variable block. फिर हमें क्लिक करना है make a variable block पे। Click on the new variable name block. अब हमें क्लिक करना है name variable name block पे and type score in it and click OK. उसमें हमें स्कोर को टाइप करना और OK पे क्लिक करना है। So a new window will appear. जैसे हम ये करेंगे एक नया विंडो हमारे सामने आ जाएगा। We can see that a new variable is created and appears on the left corner of the stage. तो हम देखेंगे कि एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया और जो स्टेज है उसके लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये दिखेगा। Now we want that score should move as we touch the fish. अब हमें क्या चाहिए, हमें जो स्कोर को बढ़ाना जैसे ही फिश को टच करें। For which we need to do another coding for the scoring. So अब हमें क्या करना होगा, दूसरी कोडिंग करनी होगी स्कोरिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप है add change my variable by one block from the variables category. हमें जो इस ब्लॉक को ऐड करना है यहाँ पे by the down arrow change it to score. अब डाउन एरो की मदद से हम उसे स्कोर में कन्वर्ट कर देंगे। Our coding for the underwater game had been completed. हमारी जो कोडिंग है अंडर वाटर गेम की वो अब कंप्लीट हो चुकी है। Now we should test the game by clicking on the green flag above the stage. अब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करके हम अपने गेम को टेस्ट कर सकते हैं। If you find any errors in the program, अगर आपको प्रोग्राम में कोई भी एरर दिखे, then recheck the entire coding again. फिर आपको क्या करना है, जो कोडिंग है उसे दोबारा से चेक करनी होगी। So जैसे हमने ये किया तो क्या हुआ, now click on the full screen control button. जो हमारा full screen control button है उस पर क्लिक करना है in the right corner of the stage and play the game. जो राइट कॉर्नर है वहां पे आपको ये बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और गेम को प्ले करना है। सेविंग योर गेम, गेम तो बन गया, हमने प्ले भी कर लिया, अब उसे सेव कैसे करना है। As we have successfully made our first game in Scratch 3.12, now we must save the game. Click on File, Save to your computer to save the game. तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, Type a name and click on the Save to save your game. फिर हमें नाम लिख के यहाँ पे हम अपना गेम सेव कर सकते हैं। So this was how game is to be created and saved. Now let's move on to recap. Scratch helps us to make our own interactive stories, game and animations. Paint new backdrop helps to design or draw backdrops from the Scratch project. Paint new sprite button helps to create a new sprite or modify an existing one. Control category helps to add the forever and the if block. Position of a sprite can be changed by going to XY block, which is available in the motion category. We can reduce or increase the size of the sprite. Flag block in the events category helps to execute the program by clicking on the green flag and stop the program by clicking on the stop button. Now let's move on to evaluate. E exercises fill in the blanks. First one is Scratch is a visual programming language that helps you to make your own interactive stories, animations, games, music and more. Second, to move the sprite forward, increase the X coordinate. Third one, to move the sprite backward, decrease the X coordinate. Fourth one, we can add sound to the cat sprite by adding the sound block. Fifth one, green flag helps to start the program. Now let's move on to B exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is, we can add scoring by making a new variable. This is true. Second one, the game stops if stop button is clicked. Yes, true.
Third one, the sprite can play sound with move 10 block in the motion category. False. Fourth one, the green flag can be added from the looks script. False. Fifth one, change the x coordinate if you want to move the sprite upward. False. And the last, sixth one is, when key pressed block can be added from the events scripts. This is true. So these are the answers. Like this, you have to do the rest of the questions. Yes. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.